So now let's see a video. Okay. So I'm sharing a screen. So please listen and see it carefully. Including mRNA, the small and large subunits of the ribosome, tRNA, and finally, the release factor. The process is broken into 3 stages: initiation, elongation, and termination. Let's see the process in action. Eukaryotic mRNA, the substrate for translation, has a unique 3' end called the poly-A tail. mRNA also contains codons that will encode for specific amino acids. A methylated cap is found at the 5' end. Translation initiation begins when the small subunit of the ribosome attaches to the cap and moves to the translation initiation site. tRNA is another key molecule. It contains an anticodon that is complementary to the mRNA codon to which it binds. The first mRNA codon is typically AUG. Attached to the end of the tRNA is the corresponding amino acid. Methionine corresponds to the AUG codon. The large subunit of the ribosome now binds to create the peptidyl, or P site, and the amino acid, or A site. The first tRNA occupies the P site. The second tRNA enters the A site and is complementary to the second mRNA codon. The methionine is then transferred to the A site amino acid. The first tRNA exits, the ribosome moves along the mRNA, and the next tRNA enters. These are the basic steps of elongation. As elongation continues, the growing peptide is continually transferred to the A site tRNA, the ribosome moves along the mRNA, and new tRNAs enter. When a stop codon is encountered in the A site, a release enters the A site and translation is terminated. When termination is reached, the ribosome dissociates and the newly formed protein is released. Okay. So did you like it? Yes, sir. It was visible with normally visible था ठीक ठाक. Yes, sir. नहीं तो इसी से एक्चुअली आई वांटेड टू शो यू दिस सो दैट आप समझेंगे कि वो मूव कैसे करता है कि नहीं. तो इसीलिए दैट इज व्हाई आई वांटेड टू शो यू. नाउ अगेन विल गो फॉर अनदर शेयर. देखिए, एंजॉय. So this is the beauty of a virtual class. These things are not possible in your general classroom. Okay, chaliye. In DNA is transcribed into messenger RNA and then translated into protein. Translation begins when messenger RNA binds to the ribosome. The initial transfer RNA occupies the P site on the ribosome. Subsequent transfer RNAs with bound amino acids first enter the ribosome at the A site. The complementary matching of 3 nucleotides on the transfer RNA, called the anticodon, and 3 nucleotides on the messenger RNA, called the codon, ensures the correct sequence of amino acids. The messenger RNA passes along the ribosome in short spurts of 3 nucleotides at a time. As this occurs, the initial transfer RNA is moved to the E site, and its amino acid is transferred to the second amino acid at the P site. At the same time, a new codon is presented at the A site. The initiating transfer RNA, which now no longer carries an amino acid, leaves the E site, and the next transfer RNA with a complementary anticodon enters the A site.
Each time a new codon sequence moves into the A site, a new transfer RNA brings in an amino acid. The old transfer RNA paired with the previous codon is passed to the P site and then to the E site as the amino acid it carried is transferred to the growing amino acid chain. As the ribosome proceeds down the messenger RNA, a stop codon is finally encountered. At this point, the ribosomal complex falls apart and the protein is released into the cell. ओके तो ये और थोड़ा सा इजियर वर्जन था, है कि नहीं? डिड यू सी दिस और नॉट? यस सर। चलिए, तो एक्चुअली वही चीज है, तो एक बार इसको देख लेने से क्या होता है, थोड़ा विजुअलाइजेशन हो जाता है कि एक्चुअली कैसे हो रहा है, वरना बच्चे समझते नहीं है मूव कर रहा है, क्या मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, तो वो जरा सा क्लियर नहीं होता है. So that is the main thing. So I wanted to show you these things. Okay. चलिए. So now you understood. तो about the P site A site कभी और होगा. तो actually translation का एक बढ़िया वीडियो रिकॉर्ड होगा कल, जो 12th क्लास में चल रहा है. तो अगर चाहो तो आप वो वीडियो दोबारा देख सकते हो. एंड ये भी वीडियोस रिकॉर्ड हो गया हमारे वीडियो में, तो ये आप जब वहां देखोगे तो आपको दिखेगा. आई थिंक सो. चलिए. ओके. So any doubts now you can ask, otherwise we'll go ahead. Now देख रहे हो, तो पहला वाला जो वीडियो हमने देखा था वो यूकैरियोटिक बोल रहे थे, इसलिए उसने दो साइड दिखाया, पी साइट एंड ए साइट. बट जो दूसरा वाला वीडियो हमने देखा वो प्रोकैरियोटिक था, एंड वहां कितना साइट्स था? 3 साइट, ई साइट, पी साइट एंड ए साइट. कोई डाउट्स? चलिए. सो अगेन लेट अस सी दिस इज द जो लास्ट वाला टाइप हमने देखा. तो आप देख रहे हो राइबोसोम शिफ्ट कर रहा है. तो जैसे राइबोसोम शिफ्ट कर रहा है, जो एयूजी पी पे था, राइबोसोम इधर आ गया. जब राइबोसोम इधर आ गया, एयूजी चला गया ई पे. ओके. जो डाइपेप्टाइड बना वो चला आया पी पे. ए साइट फिर खाली. तो खाली का मतलब क्या है? वो एक और अमीनो एसिड आएगा, एंड ऐसा चलता जाएगा. कब तक चलता जाएगा? जब तक एक स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता. ओके. तो जब तक एक स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता, तो स्टॉप कोडॉन आने से क्या होगा? आपका प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा. क्यों? देयर इज नो मोर अमीनो एसिड. तो इसलिए आपका पेप्टाइड बॉन्ड जो है बनेगा नहीं. तो जो पी साइट का टीआरएनए है वो छोड़ देगा प्रोटीन को, एंड फिर डिसअसेंबली होगा, टूट जाएगा. इज इट क्लियर? एनीबॉडी हु वांट्स टू अंडरस्टैंड मोर? ना चल जाएगा गाड़ी? यस सर, क्लियर है. चलिए. सो नाउ उसमें भी हम लोग यू वांट टू सी, देन वी कैन सी द 2D स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम्स. तो ये जो 2D स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स हम लोग देखेंगे, तो उसमें आप देखोगे कि बेसिकली उसमें हमारा कितना साइट्स होगा? 3 साइट्स होगा. ओके. सो देयर विल बी 3 साइट्स इन द पेप्टिडिल प्रोकैरियोटिक राइबोसोम. ठीक है. तो आई एम ट्राइंग टू शो यू द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम. चलिए. तो लेट मी शेयर इट टू यू. नहीं पर नाउ. सो ये आपका प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, देख रहे हो? सो दिस इज अ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम. हियर यू आर सीइंग बेसिकली 3 सब यूनिट्स, है कि नहीं? तो आप देख रहे हो ई साइट जो सिर्फ लार्ज में होता है, पी साइट जो जो पका जो पी साइट है उसमें आपका फर्स्ट टीआरएनए आता है, ए साइट में सेकंड. तो जैसे आपने दो वीडियो में देखा, तो पी साइट पे जो टीआरएनए आता है वो तब आता है जब आपका लार्ज सबयूनिट गिरा नहीं होता है. अदरवाइज ये जो मूवमेंट, इसमें और अच्छे वीडियोस हैं, ये इंस्टेंटली मैं ढूंढा, अगर मैं ढूंढ के रखूंगा
फिर मैं आपको किसी दिन और अच्छा वीडियो दिखाऊंगा। सेवा करने सफल अपने। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, सो ये आपका जो है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है। तो नाउ दिस इज द एक्चुअली, अगर हम बनाएंगे तो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर 50s सब यूनिट एंड दिस इज योर 30s सब यूनिट। है, समझ रहे हो? तो ये 50s सब यूनिट है, ये 30s सब यूनिट है। क्लियर? चलिए, सो विल सेव दिस डायग्राम एंड विल गो अहेड। So now we'll go back to writing. Everything तो class नहीं दिया? नहीं, I'm getting disturbed. Class always disturbed. तो उसके बाद आपका जो है next topic. So अब what is the function of the ribosomes? ये क्या करता है? तो हमने तीनों साइड का फंक्शन देख लिया. Now और differences क्या है? That in the prokaryotic ribosome, क्या in the तो in the prokaryotic ribosome, in the prokaryotic ribosome कितना rRNA होता है? There are 3 rRNAs. ठीक है, 3 ठो राइबोसोमल आरएनए होता है एंड नियरली 80 प्रोटीन्स। ठीक है, तो आपका अराउंड 3 rRNAs होगा एंड नियरली 80 प्रोटीन्स होंगे। क्लियर? नाउ तो कौन से rRNAs हैं आपको याद है? इफ यू रिमेम्बर, सोच के बताओ कौन कौन से rRNA हमने पढ़ा था? 16s, 23s, 5s, 16. सीक्वेंस में बताना पड़ेगा ना, तभी तो मजा है। वैसे तो कोई भी भूल देगा। You have to tell in proper sequence. माने लार्ज में कौन कौन सा होता है, स्मॉल में कौन कौन सा होता है, आपको ऐसे बताना पड़ेगा, समझ रहे हो? नहीं तो फिर दाल रोटी नहीं गलेगा। so large में 28s, 5.8s नो और नो 5s. नो 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 नो, हु आर यू? नाम बताओ। एक्चुअली मुझे अभी दिखता नहीं है ना नाम। समीक्षा मेडियर, एक्चुअली आई एम अनेबल टू सी द नेम्स नाउ ना, जब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ वो नेम शीट नहीं होता है। चलो, तो अब एक्चुअली आई एम हैप्पी यू आर टॉकिंग, इसलिए मैंने जानबूझ के तुमसे नाम पूछा है, क्योंकि तुम गूंगे जैसे बैठ जाते थे ना। तो आई डोंट वांट एनी गूंगास इन दिस क्लास, आई वांट एवरीबॉडी टू टॉक। ओके, नाउ एक्चुअली व्हाट हैपेंस, आई एम शोइंग यू अनदर स्क्रीन। फाइन, सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हम आपको फोटो खींच के रख देंगे सो दैट आपको ये दिया जा सके। तो एक्चुअली बहुत डिस्टर्ब करता है ये मेरे को। नाउ देख रहे हैं, तो ये आपका कंपोजिशन है। वी विल ट्राई टू सेव दिस स्क्रीन फॉर यू। अब यहां ध्यान दीजिए, तो एक्चुअली ये आपका प्रोकैरियोटिक कंसेप्ट है। ठीक है ना, प्रोकैरियोट्स में आप क्या देख रहे हो, दैट ये आपका स्मॉल सब यूनिट है, तो एंड ये आपका लार्ज सब यूनिट है। बोले बोले, तो कितना प्रोटीन्स है? 21 प्लस 34, ये नियरली 55 हो जाएगा। ओके, ये एग्जैक्ट है, वो नियरली हम लोग बोल रहे थे, ये एग्जैक्ट है। प्लस आपका कौन कौन सा राइब आरएनए है? तो आपका स्मॉल सब यूनिट में एक ही rRNA होता है, दैट इज 16s, एंड लार्ज सब यूनिट में 2 होता है, दैट इज 5s एंड 23s। अंडरस्टूड? तो इसका एक फोटो ले लिया जाए। नाउ अगर हम यूकैरियोटिक देखेंगे, तो यूकैरियोटिक में क्या होगा? अनिया देख रहे हो ना, 3 सब यूनिट है, ये 3 सब यूनिट, 2 सब यूनिट। ओके, सो अब ये आपका यूकैरियोटिक कंसेप्ट है। तो यूकैरियोटिक में क्या होता है,
जो स्मॉल सब यूनिट है ये, एंड ये आपका लार्ज सब यूनिट है, ये आपका टोटल राइबोसोम है। अंडरस्टैंड? सो ये दिस इज द केस। इसको हम लोग थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। नाउ तो समझ रहे हो? तो स्मॉल सब यूनिट में अभी आपका क्या है देखो। इन स्मॉल सब यूनिट you have 18s rRNA and 33 proteins, and large subunit में क्या आ जाएगा आपका 49 proteins and 3 rRNA। कौन कौन सा 3 rRNA? 28s, 5s and 5.8s। इसमें एक याद रखेंगे पीएमटी पॉइंट, ये जो 28s है ये राइबोजाइम है। अंडरस्टूड? सो दिस 28s इज राइबोजाइम। याद है व्हाट इज राइबोजाइम? मैंने आपको बोला था, बताओ। कैटालिटिक आरएनए। तो उसी तरह प्रोकैरियोट्स में कौन राइबोजाइम है? राइबोजाइम। ओके, सो दैट इज योर 23s। अंडरस्टूड? तो 23s आपका प्रोकैरियोटिक राइबोजाइम है, एंड जो 28s आपका यूकैरियोटिक राइबोजाइम है। इसका काम क्या है इस राइबोजाइम का? इसको हम क्या कहते हैं? पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। आया समझ? तो इसका भी काम वही है, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। तो यही एंजाइम पेप्टाइड बॉन्ड आपका बनाता है। कोई शक ना आगे चला जाए? अंडरस्टैंड? तो इसलिए अब हम लोग क्लियरली वहां लिख देंगे तो दैट कि हमने कितना देखा। सो देयर आर एक्चुअली 21 and 34। तो विल मेक द नेसेसरी चेंजेस। ओके, सो नाउ विल गो बैक टू आवर स्क्रीन। तो इधर आप लोग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या? सो वी आर डिस्कसिंग दैट in prokaryotic ribosomes, okay, in prokaryotic ribosomes there are 3 RNAs and 55 proteins। ठीक है? तो इसको हम लोग ऐसे ड्राइंग बना के, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, याद है कि नहीं? जब हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंसेस। तो ये आपका लार्ज सब यूनिट है, सपोज ये हम उसके लिए एक स्मॉल सब यूनिट बनाएंगे। ठीक है? दिस इज लार्ज, दिस इज स्मॉल, फाइन। एंड ये हमारा क्या बनाएंगे? सो दीज आर द डिलीट। सो ये क्या बना रहे हैं हम लोग? सो दिस इज द पी साइट, है कि नहीं? एंड दिस इज द ए साइट, एंड दिस इज द क्या? ई साइट। बोले बोले अच्छा लग रहा है? सो दिस इज कॉल्ड, देख रहे हो हाउ टू एंजॉय जूम? लोग सोचते हैं जूम में कुछ नहीं हो सकता है। तो ये है ई पी ए साइट। ओके, ई पी ए। नीचे में ओनली आपका पी ए साइट होगा, नीचे वाले सब यूनिट में पी एंड ए, देयर इज नो ई साइट। नाउ कौन कौन सा राइबोसोमल आरएनए है वो लिख लेंगे हम लोग। तो आपका जो लार्ज सब यूनिट है उसमें 23s किधर होता है? 23s आपका पी साइट पे होता है, एंड दूसरा जो है वो जनरल होता है, वो किसी साइट पे नहीं होता। सो दैट इज योर 5s। ओके, आर आरएनए, आरएनए। तो 5s आरआरएनए आपका स्मॉल सब लार्ज सब यूनिट में कहीं भी हो सकता है, बट जो 23s सब यूनिट वाला है वो आपका पी साइट में मिलता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया पेप्टिडिल ट्रांसफरेज साइट।
जो 16s rRNA है वो आपका स्मॉल सब यूनिट में मिलता है. Understood? So this is with respect to what? The rRNAs. Now proteins कौन सा मिलता है? तो in case of your small subunit there are 34 proteins. है कि नहीं? उसमें 34 proteins मिलता है in the small subunit. बोले बोले इसको थोड़ा बाहर करके दिखा देते हैं. फाइन. एंड आपका जो लार्जर सब यूनिट है उसमें कितना प्रोटीन्स होगा? इसमें आपका सॉरी सॉरी उल्टा लिख दिया हमने. इसमें होगा आपका 34 प्रोटीन्स, है कि नहीं? एंड इसमें आपका होता है 21 प्रोटीन्स. Okay, so this is the detail of what? Your ribosomes. Understand? Now, एक special चीज हम देखते हैं in case of prokaryotes. Notes. Okay, now in prokaryotes, okay, many ribosomes. Okay, many ribosomes translate. ओके जैसे आप लोग स्कूल में क्या करते हो? एप्रन शेयर करते हो, इंग्लिश बुक शेयर करते हो. आप देखोगे जब इंग्लिश क्लास होगा ना और बच्चे सब सेक्शन सेक्शन भागेंगे. हे ठीक है इंग्लिश पढ़े दे लो, इंग्लिश पढ़े दे लो, इंग्लिश पढ़े दे लो, या लैब मैनुअल दे लो, लैब मैनुअल दे लो. क्यों? वो कोई कोई खरीदा होता है, 90% बच्चे नहीं खरीदते. तो वो शेयरिंग में ही चलता रहता है ना. क्या गलत बोल रहा हूं मैं सत्या? चलो तो इसलिए इन प्रोकैरियोट्स many ribosomes translate a few mRNA and it is oftenly visible. It is oftenly visible where one can see many ribosomes translating a common mRNA. Hello? This condition is referred to as क्या? Polysome concept. है कि नहीं? तो इसको हम लोग polysome कह सकते हैं. So this condition is referred to as polysome concept and it is meant for क्या? It is meant for economy of mRNA. है ना भाई? जितना mRNA बनाएंगे खर्चा होगा. अगर एक ही बुक से काम चला लिया जाए तो दिक्कत क्या है कि नहीं? सो दिस इज द केस. पहले जमाने में बुक्स हम लोग शेयर करते थे. फॉर एग्जाम्पल जैसे ही एग्जाम खत्म होगा तो हम लोग सब भैया लोग के घर भागते थे, उन छोटे लोग हमारे घर Yes, आते sir. थे. तो देयर वाज बुक शेयरिंग कंसेप्ट. बट आजकल स्कूल एंड कॉलेज बुक बिजनेस खोल दिया है. तो इसीलिए बेचारा आप देखोगे सेकेंड हैंड में भी बुक का कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि कोई खरीदेगा ही नहीं. आपका छोटा भाई को भी वो बुक खरीदना पड़ेगा भले ही वो अगले क्लास में हो. है कि नहीं? सो ड्यू टू दिस बिजनेस ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस अभी जो सेकेंड हैंड बुक्स का कंसेप्ट नहीं है. चलिए तो नाउ ये समझ में आया. दिस इज कॉल्ड इकोनॉमी ऑफ टीआरएनए. तो इसीलिए व्हाट यू विल सी, तो आप देखोगे कि ऐसा एक एमआरएनए होगा. फाइन. सो दिस इज योर व्हाट? एमआरएनए. एंड आपको मालूम है एमआरएनए का आगे क्या होगा? 5 प्राइम एंड पीछे क्या होगा? 3 प्राइम एंड. ठीक है. एंड आप देखोगे इसमें बहुत सारे राइबोजाइम्स लगे होंगे. ओके क्या? राइबोसोम्स. तो मेनी राइबोसोम्स विल बी अटैच. एक, देख, 3, सपोज ये लार्ज सब यूनिट्स है एंड ये आपका
स्मॉल सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट्स, एंड ये आपका स्मॉल सब यूनिट। एंड आप देख रहे होंगे कि आपका प्रोटीन सिंथेसिस चल रहा होगा, तो इसीलिए सिंस ये शुरू हो रहा है, इसमें से एक छोटा सा प्रोटीन आएगा, ये आगे चला गया है, इसमें से थोड़ा लंबा प्रोटीन आएगा, ये और आगे चला गया है, इसका एक बहुत ही ज्यादा लंबा प्रोटीन आएगा। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पॉलीसोम। ये आपका राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स ब्रैकेट many on a mRNA, on a mRNA, on an mRNA होगा ना, on a होगा, बोलो, वो खुद सोच लेना नहीं तो ना। ओके, एंड ये क्या है, दिस इज ग्रोइंग पेप्टाइड, ग्रोइंग पेप्टाइड चेन। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पॉलीसोम। समझ में आया? तो ये आपका कंसेप्ट है पॉलीसोम का। क्लियर? चलिए, तो ये हमारा राइबोसोम टॉपिक हो गया फिनिश। Now, the next thing that we will discuss about prokaryotes is what? We will discuss about flagella. Okay? So the next structure जो हम लोग discuss करेंगे, that is called prokaryotic flagella. ठीक है? Now, again, you know, this is basically what? This is a locomotory organelle. Okay, so this is a locomotory organelle, मतलब ये लोकोमोशन में आपका मदद करता है। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना चलेंगे आगे। सो दिस इज बेसिकली लोकोमोटरी ऑर्गेनेल, ये आपका लोकोमोशन में मदद करेगा। नाउ इन केस ऑफ योर प्रोकैरियोट्स, जो फ्लैजेला है उसके अलग अलग कंपोनेंट, तो इट इज नॉट योर यूकैरियोटिक फ्लैजेला। ये आप ध्यान रखेंगे, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला किस चीज से बना होता है? फ्लैजेलिन प्रोटीन से। ठीक है, तो इसीलिए जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला है, इसको हम लिखेंगे, ओके, नाउ जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला है, it is made up of flagellin protein. Okay, okay, now it is point number 1, single stranded, मतलब कोई भी 9+ 5+ अरेंजमेंट नहीं होता, single stranded made up of flagellin protein ब्रैकेट में and not tubulin protein. समझ रहे हो? Okay, so 1.7 nanometer long, 9+2 arrangement of microtubule is absent. क्यों? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें ट्यूब्यूलिन होता ही नहीं है, तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनता है। एंड दे शो रोटेटरी मूवमेंट, ऐसे गोल 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 घूमेगा। बैक्टीरिया फ्लैजेला आर मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, बेसल बॉडी, या उसको आप रूट कह सकते हो, हुक एंड फिलामेंट। तो बेसल बॉडी टर्म जो हम लोग यूज करते हैं वो करेक्ट नहीं होता है, बट बुक्स में लिखा होता है, इसलिए मैं भी लिख देता हूं। नाउ उसमें जो ये जो बेसल बॉडी है, उसको एक फोटो देख के आएंगे, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे। सो विल ट्राई टू शो यू दैट फोटोग्राफ। कहाँ गया? चलिए, सो ये जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, सो दिस इज बेसिकली ए व्हाट? प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला।
ओके, थोड़ा सा हम लोग इसको हाईलाइट करेंगे। नाउ इस पे ध्यान दीजिए, तो ये हमारा चीज है जिसको हमें ध्यान देना है। नाउ इधर आप क्या देख रहे हो, ये आपका हुक है एंड ये आपका फिलामेंट है। ये दोनों आपका क्या है, ये दोनों आपके आउटर सेगमेंट्स हैं, है कि नहीं? सो दे आर योर आउटर कंपोनेंट्स, ठीक है? तो आउटर कंपोनेंट्स ये बाहर बाहर मिलते हैं, दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, ठीक है? तो आपका बेस क्या, फ्लैज फिलामेंट एंड आपका क्या, जो हुक। और ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को देखो हम लोग क्या कहते हैं, बेसल बॉडी। बट वी शुड एब्सटेन। नाउ ये जो बेसल बॉडी है, इसमें 3 पार्ट है। एक्चुअली इसको हम लोग क्यों बेसल बॉडी बोलते हैं मालूम है? हम सिनोनिमस ले लेते हैं हमारे ये जो यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर के साथ, इसलिए हम लोग उसको बेसल बॉडी बोलते हैं। बट एक्चुअली आपको ध्यान होगा, बेसल बॉडी इज मेड फ्रॉम सेंट्रियोल, समझ रहे हो? तो वो आपका यहाँ कोई सेंट्रियोल फेंट्रियोल नहीं है। सो दैट इज वाई ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। नाउ ये आपका फिलामेंट हुक हो गया। ना बेसल बॉडी में आप देख रहे हो, ये दिस इज व्हाट, दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल वॉल। ये कौन सा सेल देख रहे हो? सो ये आपका आउटर मेम्ब्रेन है, ये पेप्टिडोग्लाइकैन है, ये इनर सेल मेम्ब्रेन है, या फिर आप इसको कह सकते हो। तो इसलिए ये जो आपका आउटर रिंग्स है, रॉड है एंड इनर रिंग्स है, ये उसका तीनों इंटरनल पार्ट्स है। तो इनर रिंग साइटोप्लाज्म जो मेम्ब्रेन में होता है, सेल मेम्ब्रेन, वहां अटैच होता है। आपका जो रॉड पार्ट है वो बिटवीन द गैप्स होता है, एंड आउटर रिंग आपका जो बाहर के पेप्टिडोग्लाइकैन एंड आउटर मेम्ब्रेन को कनेक्ट कर रहा है। सो यू आर वेरी क्लियरली सीइंग दिस स्ट्रक्चर, ठीक है? सो यू हैव सेव्ड दिस, इसको आप आराम से देख सकते हैं घर में। चलिए, सो नाउ वी विल गो टू राइट अबाउट दैट। कहाँ गया? सो यहाँ हम लोग लिख रहे थे, ओके। नाउ द बेसल बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ क्या, रिंग्स इन द रीजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो 4 basal rings are present in gram negative and 2 rings are present in gram positive. तो ये डिफरेंस आ गया, देखो। Now the flagellar movement is rotatory and ATP खर्चा होता है। Obviously ATP तो खर्चा होगा ही होगा अगर आप उसको मूव करेंगे। तो इसलिए ये पॉइंट को हम लोग हाईलाइट कर देंगे। 4 बेसल रिंग ग्राम पॉजिटिव में होता है एंड 2 बेसल रिंग ग्राम नेगेटिव में, क्या ग्राम नेगेटिव में 4, ग्राम पॉजिटिव में 2। 3 पार्ट्स होता है बेसल बॉडी हुक। फिलामेंट फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है, ट्यूबुलिन से नहीं बना होता, इसीलिए 9+2 ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट होता है, ठीक है? सो दीज आर वेरी वेरी कंस्ट्रक्ट्स। प्लस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दैट बैक्टीरिया, ओके, बैक्टीरिया are classified on the basis of number and arrangement of flagella, है कि नहीं? तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए इसके बारे में हम लोग और डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है? सो इसलिए यहाँ कुछ चीजें ध्यान देने के लिए है। अगेन आई हैव टोल्ड यू, ये हॉट टॉपिक है केवीपीआई के लिए। फाइन, सो इट्स अ वेरी वेरी हॉट टॉपिक फॉर केवीपीआई। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला, फ्लैजेलिन, नो ट्यूबुलिन, नो 9+2 अरेंजमेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द थिंग विच यू हैव टू रिमेम्बर। क्लियर? चलिए, सो मीटिंग कट जाएगा। सो आई डोंट वांट टू go into incomplete topic. You can ask any doubts.
कुछ है तो पूछ लो, अदरवाइज वी विल क्लोज द मीटिंग। सर मंडे से केबीपीआई क्लास होगा? नहीं, जब तक आप लोग डिसाइड नहीं कर रहे हो, इसलिए डोंट वेट। तुम 3 लोग ही वेट करते हो, आत्मन है, तू है और